इस प्रोग्राम च अज असीं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हां एक ऐसे डॉक्टर दे नाल जिन्हां नूं डेंटल दा लगभग 33 साल दा लंबा तजुर्बा है ते दंदां दे रोगियां दे लई ओह एक वरदान ने। साडी मुराद डॉक्टर राजनवीर सिंह थिंद जी तो है। डॉक्टर राजनवीर थिंद डेंटल क्लिनिक ਅਤੇ मुस्कुराहट चैरिटेबल डेंटल क्लिनिक विखे अपनी सेवावां दे रहे ने जो कि 11, 12 एंड 13 HIG मार्केट जमालपुर लुधियाना विखे स्थित है। मुस्कुराहट चैरिटेबल डेंटल क्लिनिक जो कि बाबा पूरन सिंह थिंद मैडिकल ट्रस्ट ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। थिंद डेंटल क्लिनिक जो कि NABH अप्रूव्ड है ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਡਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ट्रेनिंग ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨਵੀਰ ਥਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥਿੰਦ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥਿੰਦ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੁਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 10th ਔਰ +2 ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਾ ਦਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 32-33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੰਦ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦੰਦ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਦੰਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 30,000 ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 30,000 ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥਸ਼ਾਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ। ਹੈਲਥਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਇਓ, ਫੀਸ ਦੇ ਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, 32 ਸਾਲ ਥਿੰਦ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਥਿੰਦ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥਿੰਦ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ CBCT ਡੈਂਟਲ CT ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, 2 OPG ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਲੱਸ 20 ਡੈਂਟਲ ਚੇਅਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਰ। ਜੈਸਾ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਲੀਨਿਕ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਥਿੰਦ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਥਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਪਾਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਉੱਭੇ ਪਏ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ +2 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 10th ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋੜ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਜਾਂ 10th ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਸਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੁੱਟਫਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ +2 ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ OPG ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰੋਲ ਸਕੈਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗੇ ਨਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਰਡ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕਰੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੇਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਰ। ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਡੈਂਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਪ ਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਕੋਪ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਉਹਨੂੰ 90,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਣੇ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ 300 × 2 600 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ 9,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ 9,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਬੈਠਣ ਲਈ, ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਹੀ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ 150 ਰੁਪਈਆ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਲੱਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ 60 ਰੁਪਈਏ, ਅਤੇ 210 ਰੁਪਈਏ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਣਨਾ 600 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ 290 ਰੁਪਈਏ ਬਚ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਂਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਊਚਰ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਲੋਕ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ +2 ਵਾਲੇ, 10th ਵਾਲੇ, BA ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ BA ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ BSc ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੰਦ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਇਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਟੋਟਲ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਬਣਿਆ ਪਰ ਮੰਥ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਾਓਲ ਸਕੈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਂਟਲ CT ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਂਟਲ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਕ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਭਾਜੀ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਰੁਪਈਆ 15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਦ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਲੋਗੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਂਟਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬਣ ਜਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪਿਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਤੇ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਸਟ ਨੇ, ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੁੱਕ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਚੂਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਪਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਟੋਕਲੇਵ ਹੈ, ਆਟੋਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਤੇ 31 ਸਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਟੋਕਲੇਵ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ NABH ਅਪਰੂਵਡ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੇੜੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ NABH। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ NABH ਹੈ, ਡੈਂਟਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NABH ਨੇ ਸਿਖਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NABH ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ NABH ਅਪਰੂਵਡ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ NABH, ਔਰ ਤੁਸੀਂ NABH ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ NABH ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਆਉਣੀ ਵੀ NABH ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਜੂ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦਰਸ਼ਕੋ NABH ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਟੋਕਲੇਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਫਰਕ ਪਾਈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਧੀ ਹੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि कोविड के बाद विच लोगों को समझ आ गई कि स्टरलाइजेशन की चीज़ होती है। थैंक यू। अभी मैं हेल्थशाला के ट्रेनर के साथ, मैडम स्वागत है आपका। रेणु जी, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ बच्चे आते हैं बहुत ही घबराए हुए, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जाते हैं फ्लाई करके, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर रेणु है। जैसे कि आपने हेल्थशाला के बारे में बोला कि बच्चे डर के आते हैं और फ्लाई करके जाते हैं, तो इससे रिलेटेड एक है हमारे यहाँ पे, सुशील नाम है उस लड़की का, यहीं से लोकल है लुधियाने से। उसने बेसिकली बाहर जाना है थोड़े दिनों में, तो वो हमारे यहाँ से हेल्थशाला का कोर्स कर रही है। पहले वो बहुत डरती थी कि मुझसे नहीं होगा मैम, पेशेंट है, कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अब वो सब कुछ करती है, हमारे साथ हर एक चीज़ असिस्ट करती है, एक्सरे करवाती है, स्केलिंग करती है, और हम उसे हर एक चीज़ अपडेट कर रहे हैं, हर एक चीज़ें सिखा रहे हैं। जैसे हमने उसे कुछ ज़रूरी कोड्स हैं, जैसे हमारे मेडिकल फील्ड्स में होते हैं, जैसे कि कोड ब्लू मेडिकल इमरजेंसी के लिए, उसकी ट्रेनिंग अभी हमने कल दी है उन्हें। फिर हमने उन्हें कोड रेड के बारे में बताया, फायर के बारे में। फिर उसके बाद हमने उन्हें प्रॉपर BLS की ट्रेनिंग दी है। अपोलो हॉस्पिटल में ले जाके हमारा पूरा स्टाफ गया था वहाँ पे, हमने वहाँ पे प्रॉपर करवाया बच्चों को, उनके प्रॉपर उनको सर्टिफिकेट्स दिलवाए हैं। तो सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चे डरे हुए आते हैं और फ्लाई करके जाते हैं। रेणु जी, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो 32 ईयर से टॉप में है और डेंटल के फील्ड में जिसने नई एक लोगों में जान फूंक दी है, क्या कहना चाहेंगे कि उस हॉस्पिटल में आते हैं जब लोग उस डेंटल क्लिनिक में आते हैं तो वैसे ही हौसला उनका डबल रहता है, और जब वो डॉक्टर से मिलते हैं देखते हैं कि ये तो हमने चीज़ें देखी नहीं है कि आपने थूक भी नहीं सुटना, आपने जो है हर तरह की जो है पानी की कुरली भी नहीं करें वो भी बीच में करवा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये तो एक ऐसा क्लिनिक है जिसमें बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन, आने वाले समय में स्टरलाइजेशन जैसे यहाँ पर होती है, मेरा ख्याल नहीं कि लुधियाना में कहीं होगी। जी सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि सर बहुत सारे क्लिनिक में स्पिटेंट भी यूज़ करते हैं, हम स्पिटेंट्स नहीं यूज़ करते हैं। उसका कारण सर एक ये है कि वो स्पिटेंट्स उस इन्वायरमेंट में हमने ही रहना है, पेशेंट तो चला जाता है, फिर उसके बाद वो क्लीन किसने करना है, असिस्टेंट ही होते हैं। अगर वो बीमार हुए उनसे हम भी बीमार होंगे। तो सर बेसिकली स्पिटेंट्स बंद करने का एक यही है रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि पेशेंट ऑलरेडी इतने दर्द में हमारे पास आया हुआ था, हम बार बार उसे कहेंगे अब उठो, स्पिट करो, फिर लेटो, फिर उठो, उसको कमर दर्द भी हो जाता है। फिर वो पेशेंट ये कहता है मैं तो आया था अपना दर्द ठीक कराने, दांत का आपने मुझे कमर दर्द भी दे दिया। तो इसलिए आपने वो हमने स्पिटेंट्स बंद करें, एक इन्फेक्शन कंट्रोल भी हो जाती है उससे, और दूसरे वो कमर दर्द से भी बच जाते हैं सर अपने। और ये क्लिनिक जिसमें आते ही बच्चों को जब क्लिनिक का थिंक का अगला सोचता है तो उसके माइंड में एक पॉजिटिविटी जाती है। जब पेरेंट्स सोचते हैं कि यहाँ फुटफॉल है, आज हम संडे है फिर भी पेशेंट की लाइन लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे कि ये क्लिनिक मंडे हो या संडे रोज़ हमने तो पेशेंट्स को देखना ही है ज़्यादा से ज़्यादा। जी सर, जैसे कि हमारी पहली सर्विस क्या है, पेशेंट के लिए प्रोवाइड होना। सो बेसिकली पेशेंट्स के आजकल लोगों के पास टाइम बड़ा कम होता है, तो जैसे बहुत सारे लोगों की संडे छुट्टी होती है, अगर हम भी संडे बंद कर गए फिर वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए हमने यही रखा है कि हम वीकेंड्स में प्रॉपर अवेलेबल होते हैं। जो हमारे स्टाफ के लिए छुट्टी होती है वो हम मिड ऑफ द वीक दे देते हैं उन्हें छुट्टी। थैंक यू जी, थैंक यू। मैडम, आप भी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की हब में हैं जो सेवा दे रही है, जो पिछले 32 साल से सेवा कर रहा है दंत क्लिनिक, उसमें आप लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन बच्चों को जिनको सीखना भी है, आप पेशेंट्स को सर्विस भी देते हैं, और उन बच्चों को जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक बढ़िया तालीम दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको क्लिनिकल वर्क की इतने एक्सपोजर होता नहीं है,
तो यहाँ पे बेसिकली सर हैज़ मेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो बच्चे आके प्रैक्टिस करते हैं और वो अंडर सुपरविजन होता है ताकि पेशेंट का नुकसान ना हो। सबसे पहली बात, हम पेशेंट्स का यहाँ पे इलाज फ्री में भी कराते हैं ताकि गरीबों का फ़ायदा भी हो और जो हमारे क्लिनिक में सीखने के लिए क्लिनिकल काम के लिए आते हैं उनका भी फ़ायदा हो, उनका हाथ खुलता है। और उनको जो प्रोसीजर्स हम लोग टीच करते हैं वो अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशलिस्ट होते हैं, एंडोडोंटिस्ट, ओरल सर्जन सब आते हैं यहाँ पे ताकि हम पेशेंट का काम ख़राब ना करें, पेशेंट को हर तरीके से फ़ायदा ही हो। एंड जो TDA डॉक्टर्स यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं दे वर्क ऑन पेशेंट्स, दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू परफॉर्म प्रोसीजर्स। वो जो भी प्रोसीजर्स उनको दिए जाते हैं दे कैन परफॉर्म इट इंडिपेंडेंटली। अकेले भी उनको बिठा दोगे तो वो परफॉर्म कर पाते हैं कोर्सेज़ के बाद। और बच्चों को जैसे हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, उनको जैसे हाथ पकड़ कर सिखाना हम लोग ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली जो है उनका दिमाग जो है वो होता है पता नहीं क्या डेंटल में होगा। और जब हम लोग उनको दिखाते हैं और जैसे स्कोप है, आज कोई बच्चा बाहर चला जाए उसके लिए इससे बढ़िया और कोई स्कोप नहीं है। पहले लोग क्या था, वो कहते थे हमने आईलेट्स करना है, अब तो ये एक बढ़िया हमारे पास ऑप्शन है जो करके एक थोड़ा सा वहाँ पर एग्ज़ाम हमने क्लियर करना, वहाँ पर हम लोग डेंटल मैनेजर बन गए और इतने बड़े स्कोप हैं। सर स्कोप अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में निकल जाते हैं आगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस हम सीख लेते हैं, जैसे हम लोग जैसे इंजेक्शन लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके हैंड शिवर करते हैं इंजेक्शन पकड़ते टाइम, तो मेंटोर्स हेयर हेल्प देम। उनका हाथ जो कांप रहा होता है वो सेकंड या थर्ड गो में ही दे आर कॉन्फिडेंट, वो अपने आप लगाते हैं। उसके बाद फर्स्ट गो सेकंड गो हाथ पकड़ के सिखाया जाता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर वो अपना इंडिपेंडेंटली काम सीख लेते हैं। मैडम हम यहाँ पर केवल उनको क्लिनिकल यही नहीं सिखाते, हम लोग उसको इंस्टा की नॉलेज, हम लोग उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हम लोग उसका माइंड सेटअप, हम लोग एक मेंटर की तरह हम लोग उसको एक पॉलिश करते हैं बच्चे को, और उसका मेंटल एटीट्यूड इतना बढ़ जाता है कि उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, कहीं पर उसने इंटरव्यू देना हो तो वो परिपक्व है। सर यहाँ पे हम पेशेंट मैनेजमेंट भी सबसे ज़्यादा सिखाते हैं। जैसे पेशेंट को मनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि पेशेंट क्लिनिकल प्रोसीजर के लिए मान रहा है, रूट कैनाल एक्सट्रैक्शन जो भी हमने प्रोसीजर करना उसको मनाना, कॉन्फिडेंटली बात करना, डील करना। बाकी वर्कशॉप्स जो हमारी लगती हैं वो क्लिनिकल प्रोसीजर्स के बेसिक से लगती हैं। जैसे सोशल मीडिया की हमारी एक वर्कशॉप लगती है 0 to हीरो की, उसमें सारा सोशल मीडिया की गाइडेंस दी जाती है कि आपने सोशल मीडिया पे एक्टिव कैसे होना है, कैसे रील्स प्रमोट करनी है, अपने आप को प्रमोट कैसे करना है। बाकी वर्कशॉप्स हमारी लगती हैं बेसिक प्रोसीजर्स की, ताकि उनको हैंडल करना आए, हर एक इंस्ट्रूमेंट को, पेशेंट्स को डीलिंग करनी आए एज अ पर्सन जो हैंडल कर रहा है पेशेंट को, उसको उस रेट पे उस प्रोसीजर के लिए मनाना, और जो प्रोसीजर अंडरगो करेगा वो जैसे इंजेक्शंस लगवाने, एक्सट्रैक्शन करवानी या रूट कैनाल करवानी, उनको समझाना कि उस प्रोसीजर का इम्पोर्टेंस क्या है, वो कैसे समझाना है, A to Z वो सारी गाइडेंस दी जाती है। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि बाहर से रेफरेंसेस लोगों को मिलते हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट डे से ही हम लोग उनको पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करवा देते हैं, उनको हाथ खुलना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पेशेंट का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग चैरिटेबल भी चला रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, हम लोग अपना क्लिनिक भी 32 साल पुराना है और बिल्कुल नई मशीनरी है। सर हमारी सारी न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास OPG मशीन है, इंट्राओरल स्कैनर है, इंट्राओरल कैमराज हैं। हम पेशेंट्स को पिक्चर्स दिखाते हैं उनकी कि आपके दांत कैसे दिखते हैं, उसके बाद कन्विंसिंग सिखाते भी हैं और करते भी हैं। लाइक हमारी कंसल्टेशंस होती हैं वो डॉक्टर्स के सामने होती हैं, दे लर्न कि उनको कंसल्ट कैसे करना है हमने। जो बाहर से लोग आते हैं दे फील कॉन्फिडेंट आफ्टर 2 or 3 days, क्योंकि हम डायरेक्टली पेशेंट्स पे वर्क कराते हैं। उनका जो डर होता है पेशेंट पे कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने का, इंजेक्शंस देने का, वो खुलता है। तो जो बाहर के लोग होते हैं दे आर लाइक कि मेरे को क्लिनिकल काम आना चाहिए। वहाँ पे उनकी एक तरह से टेस्टिंग होती है, समझो कि इंडिया से लोग आए हैं, इंडिया से डेंटिस्ट आया तो वो कैसा करेगा, तो एक जजमेंट को पास करने के लिए उनको क्लिनिकल प्रोसीजर सीखना होता है। तो वो यहाँ पे जब आते हैं तो वो सारा कुछ सीख के जाते हैं, वो हमें रिव्यूज़ अच्छे देते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छा सिखाया। मैडम आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि टीचर्स जो हैं यहाँ के, जो गाइड करते हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ऐसे गाइड करते हैं कि जैसे हम लोग उनकी फैमिली हो? हाँ जी सर, बिल्कुल हर चीज़ वो मतलब जो भी उनको प्रॉब्लम होती है वो हर चीज़ वो बताते हैं, हर चीज़ गाइड करते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। क्या कहना चाहेंगे कि जब आप आए तब आपकी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, अब से उसके बाद जब आप यहाँ से ग्रो हो रहे हैं
तो पेरेंट्स भी बोलने लगे क्या कर रहा है तूने, अरे काफ़ी पहले से कॉन्फिडेंस लग रहा है। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, बहुत ज़्यादा मेरे में इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पेशेंट के साथ जब हम लोग डील करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, तो हमें एक अनुभव सा होता है खुशी का, जब हम पेशेंट हमें आशीष देता है, डॉक्टर को बोलता है, कहता है यार आप लोगों ने हमारी हेल्प की है। सर उस टाइम हमें जब ऐसे पेशेंट बोलता है ना, हमें खुद के ऊपर प्राउड ऑफ फील होता है बहुत ज़्यादा कि पेशेंट हमारे पास आया था प्रॉब्लम लेके, हमने उनके प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया। और ऐसे लगता है कि हमने जो चूज़ कराया उसको, जो हमने प्रोफेशन चूज़ किया कि हमने इस फील्ड में जाना है, वो फील्ड हमारे लिए बढ़िया है। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे लिए। थैंक यू सर। बेटा वो वेंचर जो 32 साल से लोगों की सेवा में समर्पण है, और आपके मम्मी पापा ने जैसे सारी ज़िंदगी सेवा की है, और दे आर ब्लेस्ड कि अब उनकी बेटी जो MDS करके उनके साथ ज्वाइन किया है। कैसा लग रहा है कि हमें कोई ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम आए पेशेंट देख रहे हैं और मज़े से सारी टेंशन पापा ले रहे हैं, और हम लोग मज़े से पेशेंट देख रहे हैं। पेशेंट की फ़्लो बहुत ज़्यादा है और हम लोग सारा दिन बिज़ी रहते हैं, और सारी फ्रेंड्स भी ये कहने लगी अरे क्या कर रही है तू तो पूरी ज़्यादा समर्पित हो गई। नहीं सर, ऐसी की कोई बात नहीं है। सगों जो लेवल मेरे मम्मा पापा ने बनाया था, मुझे उससे और लेवल अप भी करना है अपने आप को, तो वो भी एक मेरे अंदर अलग ही टास्क है कि हाँ मेरे को अपना मेंटेन करके रखना है कि हाँ वो ये ना कहे कि लोग जैसे ये ना कहे, पेशेंट्स ये ना समझे कि हाँ इनको नहीं आता, ये नहीं हो रहा। तो वो सारा कुछ हमें बहुत अच्छे से मेरे को और ज़्यादा प्रेशर है। सको लोगों को लगता है कि हाँ इसका बहुत ईजी है, बहुत ईजीली काम हो गया है कि हाँ इनके पास सेटअप है तो ये अच्छे से पेशेंट वगैरह करते रहेंगे, बट वो लेवल को मेंटेन करना, क्योंकि मम्मा पापा ने बहुत मेहनत करके 32 साल उन्होंने मेहनत करी है, जिस लेवल पे वो पहुँचे हैं मेरे को उससे ज़्यादा मेहनत करनी है अपने लिए सको। और आप लोगों ने जैसे एक ये वेंचर जिसमें आप लोग हेल्थ के लिए बच्चों को डेंटल का सिखा रहे हैं, और बच्चों में जब बच्चे आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, माइंड सेटअप, और जब जाते हैं यहाँ पर वो एक खुशी लेकर जाते हैं, उनके में टैलेंट होता है, और वो भी आप लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो सीख के जाते हैं और आगे जाके अपना अच्छे से, ताकि वो जॉब कर सकें, ताकि अपना वो मेंटेन इंडिपेंडेंट होके जिए, किसी के आगे हमने हाथ नहीं फैलाना कि हाँ हमें पैसे चाहिए, हम उनको दे सकें। तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हाँ आप अपना इंडिपेंडेंटली जैसे अपना वर्क कर रहे हो, अपना अच्छे से घर भी चला रहे हो और काम भी कर रहे हो, तो वो बैलेंस भी आपको जैसे सिखाया जाता है कि हमने काम को और घर को कैसे आपने बैलेंस करके चलना है। क्या कहना चाहेंगे कि पापा रोल मॉडल हैं आपके लिए, जिनमें इतनी एनर्जी है। आप संडे का दिन है, सारे डॉक्टर्स, हम कोई डॉक्टर होगा मेरा ख्याल है लुधियाना में जो संडे के दिन भी सेवा करता हो, लेकिन ये इंसान जिसको संडे मंडे छुट्टी सभी चीज़ें एक बराबर है कि मेरा पेशेंट जो मेरे पास आ जाए वो निराश ना लौटे। संडे को लोगों को छुट्टी होती है, तो अगर आप भी छुट्टी कर जाएंगे तो फिर वो परेशानी आ जाएगी, और यही वजह है कि वो समर्पण इंसान है, और आप उनकी बेटी हैं, आपका वो रोल मॉडल है। जी सर, बिल्कुल। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे मम्मा पापा दोनों ही बहुत बड़े मेरी लाइफ के अंदर रोल मॉडल है। उनको ही सीख के मैं यहाँ तक आज पहुँची हूँ, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी स्पेशली, और तो उन्हीं के कारण उनके लिए कोई संडे मंडे अब तो ये भी नहीं याद रहते कि हाँ कौन सा दिन है। इतना काम के अंदर हम व्यस्त रहते हैं, हम बिज़ी हो जाते हैं कि हाँ हमने पेशेंट्स पे पेशेंट्स करने हैं, ताकि हम उनका दर्द जो है, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं जैसे पेन के अंदर आते हैं, कई बार उनसे खाना नहीं खाया जाता 2-2 3-3 दिन, जैसे वो सोई नहीं होते कि दर्द हो रही है, तो उनको ट्रीट करना और वो जब ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं, उसके अंदर एक अलग ही खुशी होती है कि हाँ अब बंदा खा सकते हैं आराम से। आप अपने कलीग्स के साथ कभी भी ऐसे नहीं रहे कि मैं डॉक्टर की बेटी हूँ, आप उनके कलीग्स के साथ एक फैमिली एटमॉस्फेयर है तुम्हारा, कभी आपने ये नहीं शो किया कि मैं उनकी बेटी हूँ, मेरी कोई सुपरमेसी है। अब जब से आए हैं आप उनको अपनी बहनों की तरह उनके साथ अटैच होकर चल रहे हैं, और यही कारण है फिर एक फैमिली एटमॉस्फेयर इधर रहता है। जी सर, बिल्कुल, कि हमारा पूरा अच्छे से टीम वर्क हम जैसे करते हैं। एक होता है कि आप जॉब के लिए आए, एक होता है कि हम अपना टीम मेंबर बनाते हैं, कि लोगों को ये नहीं लगता कि हाँ जॉब के लिए हम कर रहे हैं, टीम मेंबर ही रहता है, मतलब वो भी फैमिली मेंबर बन जाता है। यस बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जैसे कि जो जाते हैं वो आफ्टर मैरिज ही जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि यूर ब्लेस्ड की बहन भी और भाई भी, वो भी डेंटल है, पांचों, एक घर के 5 लोग डेंटल वो है जिसमें हमने खाना च्यू करना है, हमने बोलना है, डेंटल के साथ बोलना भी, खाना भी, हर चीज़ डेंटल के साथ होती है, और स्मेलिंग भी हमारी, क्योंकि सबसे पहले लोग दांत देखते हैं,
क्या कहना चाहेंगे कि आप पांचों इस फील्ड में लगे हुए हो और ब्लेस्ड कि हम लोग सेवा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे? जी सर, बिल्कुल। हम पांचों ने लाइक डेंटिस्ट्री हमने जैसे ऑप्ट करी है, हमारा एक वो होता है जेनेटिक्स के अंदर, लाइक जीन्स के अंदर ही है कि हाँ हमने डेंटिस्ट्री करनी है। तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हाँ हम कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, सारा कुछ सब कुछ चल रहा है। थैंक यू सो मच। गुड़िया, आप हेल्थशाला में अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हेल्थशाला में अपनी ट्रेनिंग में। लाइक हमें डॉक्टर्स को असिस्ट करवाना, हमें एक्सरे से लेकर इंट्राओरल पिक्चर्स और स्कैनर कैसे यूज़ करते हैं, इंप्रेशन नहीं हमें आता यहाँ पे लेने के लिए, यहाँ पे लिया ही नहीं जाता हमारे क्लिनिक में। और हमने वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा है चीज़ों को लेकर कि पेशेंट के साथ कैसे डील करनी होती है, उनको कैसे असिस्ट करवाना है। और जो डॉक्टर हमारे साथ में हमारे साथ डॉक्टर काम कर रहा होता है, उनको फ़र्स्ट क्या चीज़ चाहिए होती है, एंडिंग में क्या चाहिए होती है, वो क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट क्या लेंगे, वहाँ तक का सामान पता होता है हमें, वो सब चीज़ बताई गई है यहाँ पे हमें। क्या कहना चाहेंगे कि पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है? जब आप यहाँ आते हैं तो हम थोड़ा सा घबराए हुए और अब हम लोग फ्लाई कर जाते हैं। जब हम लोग सीखते हैं, हम डेंटल फिर अपनी मम्मा को बताते हैं, मम्मा मेरे को ये भी आने लग गया। फिर वो और कहते हैं ब्रश कैसे करना है आपने, कैसे आपने अपनी हाइजीनिक को मेंटेन रखना है। क्या कहना चाहेंगे कि आप तो टीचर भी बन गए? हाँ जी, जैसे पेशेंट्स को कई बार डॉक्टर मतलब इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कई बार दे जाता, हम डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर कई बार हमें भी इंस्ट्रक्शन से लेके सारी चीज़ बताई गई है, हमें भी आती है। तो हम भी कई बार अगर पेशेंट कोई क्वेश्चन पुट करता है तो हमें ये नहीं होता कि हाँ भी ये हमें आता नहीं है, हमें सब चीज़ बताई गई है, हम वो उनके आंसर दे सकते हैं। लगता है कि आंखों में रोशनी है कि जैसे पहले बच्चे यहाँ से एडमिशन लेकर अपनी फ्लाई कर गए हैं, कोई किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई फॉरेन में अपनी सेवाएं ले रहा है, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, कर सकते हैं। गुड़िया, कैसा एक्सपीरियंस है? आपने वो लाइन चूज़ की है जिस लाइन में बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं, जिसमें इंडिया में नहीं फॉरेन में भी स्कोप है, वो लाइन आपने चूज़ की है डेंटल की, और वो भी उस रिनोड क्लिनिक में जो 32 ईयर से सेवा कर रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये वाले क्लिनिक में आई हूँ। बेसिकली यहाँ पे बहुत कुछ एडवांस है, मैंने और भी क्लिनिक देखे थे, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा एडवांस है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे कि जब आपने ज्वाइन किया और अब कितना फ़र्क लगा रहा है आपको, कितना कुछ सीख गए आप? कैसे आप जब एक्सरे कर रहे हो तो 1 मिनट में आकर एक्सरे भी कर देते हो, हर चीज़ आपको यहाँ सीखने को मिल रही है? जैसे मैं आई थी पहले मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था, अब थोड़ा अप हो रहा है मेरा कॉन्फिडेंस। और जैसे एक्सरे अब मैं कर लेती हूँ, इंट्राऑरल फ़ोटोज़ होती है वो भी अब हो जाती है, और स्कैनिंग भी होती है, तो बहुत कुछ नया सीखा है मैंने यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का एटमॉस्फेयर एम्बियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है और हमें सारे टीचर्स जो हैं वो गाइड करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं? हाँ जी, सारे टीचर्स डॉक्टर्स बहुत हेल्पफुल हैं, सभी मुझे गाइड करते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं और सभी मतलब अच्छे से बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पेशेंट की फ़्लो बहुत ज़्यादा है और वो फ़्लो के कारण हमें बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, हम लोग फ्री रहते नहीं और सारा दिन कोई ना कोई चीज़ हम नहीं, किसी पेशेंट को कैसे हमने गाइड करना, किसी पेशेंट को लेकर आ रहे हैं, किसी पेशेंट को समझा रहे हैं, तो उससे हमारा मेंटल एटीट्यूड बहुत बढ़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे हमारे डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, जैसे RCT हो गई, एक्सट्रैक्शन अलग अलग, उन्हें हम प्रोसीजर के बाद इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, हम देते भी हैं। बेटा क्या क्या सीखा आपने यहाँ से? सर मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, जैसे एक्सरेज हो गए, हमारा OPG इंट्राऑरल फ़ोटोज़ होगी और सक्शनिंग होगी, और मतलब जैसे कोई पेशेंट आता है उसे ग्रीट कैसे करना है, और स्कैनिंग होगी, मतलब बहुत कुछ सीखा है। और सबसे बड़ी बात स्टरलाइजेशन हमने सीखी है कि हर पेशेंट को स्टरलाइज करके कि हमने पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं देनी और उसकी लेनी भी नहीं। हाँ जी सर, स्टरलाइजेशन और हाइजीन बहुत ज़रूरी है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हाइजीन पूरी मेंटेन होती है, प्रॉपर होती है, इवन पेशेंट्स भी बोलते हैं बहुत अच्छा है। शिबा जी, आप भी यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, जो मेरी ट्रेनिंग है ना वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रोफेशनल जा रही है। यहाँ से ना जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी ना, मुझे पता भी नहीं था दांतों के इतने भी इलाज होते हैं। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे इतनी अच्छी नॉलेज मिली है, मेरे ओनर से भी मिली है मुझे, और यहाँ के स्टाफ से भी मिली है, डॉक्टर्स भी इतने अच्छे हैं, सभी ने कोई ना कोई, जब भी नया दिन हमारा शुरू होता है तो हम नया कुछ सीख के ही जाते हैं। यहाँ तो बस पूछो ही मत, बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है अभी भी मुझे। क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब को, जैसे आपने बोला कि मेरे पास फ़ीस की थोड़ी प्रॉब्लम है,
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रिसेप्शन पे भी आप रहो और आप सीखते भी रहो, और अब हम लोग रिसेप्शन पे भी हैं और सीख भी रहे हैं। हाँ जी सर, डॉक्टर साहब को मैंने बताया था थोड़ा मेरे घर में ना इश्यूज है कुछ, तो उन्होंने बोला था हमारे यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं हम मैनेज कर लेंगे। तो कुछ कह ही नहीं सकते, बहुत ही ग्रेटफुल है वो। अब रिसेप्शन पे भी हो और सीख भी रही हो, दोनों 2 in 1 है। हाँ जी सर, मेरा 2 in 1 है। मैं रिसेप्शन का काम भी हैंडल कर रही हूँ और साथ में यहाँ पे सीख भी रही हूँ। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ हम लोग केवल क्लिनिकल ट्रेनिंग ही नहीं लेते, उसके साथ साथ हम लोग इंटरनल ट्रेनिंग, हमारे माइंड में क्या चीज़ें हमने कैसे गाइड करना है, कैसे हमने सोशल मीडिया के साथ जुड़ना है, कैसे इंस्टा के साथ, कैसे पेशेंट को हमने कन्विंस करना है। ठीक है, जो आप इंटरनल ट्रेनिंग बोल रहे हो ये ना हम पेशेंट्स के साथ करते हैं। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उसकी फुल केयर करते हैं। जब वो हमारे पास अंदर आते हैं हम उसको ग्रीटिंग करते हैं। वो जिस भी डॉक्टर के साथ उसकी अपॉइंटमेंट होती है उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाते हैं, उसका बहुत अच्छे से काम करवा के उसको सेटिस्फाइड होके भेजते हैं। और एक हम लास्ट में ना उसका एक फीडबैक भी लेते हैं कि जैसे वो आज आया था उसको क्या फ़ील हुआ, कैसा लगा, डॉक्टर्स ने अच्छा ट्रीटमेंट किया, स्टाफ का बिहेवियर उसको कैसा लगा। तो वो अपना फीडबैक हमें हमेशा दे के जाता है। मोस्टली हमें हमारा जो फीडबैक है ना वो पॉजिटिव ही मिला है। मैडम आप हेल्थशाला में ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग लेते लेते आप असिस्टेंट भी बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों को हर तरह का यहाँ पर एक नॉलेज मिलता है, हमने यहीं से सीखा और यहाँ पर हम एज असिस्टेंट भी काम कर रहे हैं? जी सर, हाँ जी, पहले हमें कुछ भी नहीं आता था। हम यहाँ पर आके हमें सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता लगा है, सारी चीज़ें के बारे में पता लगा है, सब कुछ नॉलेज मिलती है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही फैमिली है और हमारे यहाँ 3 क्लिनिक है, हमारे डॉक्टर्स भी सीखने आ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं और उसमें जब हम लोग देखते हैं इतने लोग सीखते हैं तो हमारा भी मेंटल एटीट्यूड और बढ़ता है। जी सर, हाँ जी, हमें सब कुछ यहाँ पे सब ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग के साथ हमारा मेंटल कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। आप असिस्टेंट भी एज असिस्टेंट भी काम कर रहे हैं, अब थोड़ा सा पे भी लगने लग गया है और आप लोग सीख भी रहे हैं। जी सर, हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है और सब कुछ बताया जाता है और वो सैलरी भी बहुत अच्छी दी जाती है और फैमिली बिहेवियर किया जाता है हमारे साथ। मैडम आपने यहाँ से ट्रेनिंग लिया, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग एज अ टेलीकॉलर ज्वाइन किया था, लेकिन टेलीकॉलिंग के साथ साथ मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट का भी वर्क मतलब मैम के साथ ट्राई किया है सीखने के लिए और मुझे बेटर मतलब यहाँ पे गाइडेंस मिली है मैम से और काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है, स्टाफ बहुत अच्छा है, गाइडेंस अच्छी मिलती है, ऑलमोस्ट मिला के एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा सा यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे कि आप डेंटल में भी काफ़ी परिपक्व हो गए हैं, आपको डेंटल की पूरी नॉलेज आ गई है, आपको वो भी सिखाया जाता है और उसके साथ साथ आप 3 in 1 वाली बात होगी अब? जी सर, टेलीकॉलिंग के साथ साथ मैंने यहाँ पे डेंटल के ट्रीटमेंट के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखा है। ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं तो मुझे कुछ पता चल चुका है कि ट्रीटमेंट के मतलब किस चीज़ का ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है और क्या प्रोसीजर है और पेशेंट मतलब पूरे से वो रहते हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी तरह की कंप्लेंट नहीं आई है सर यहाँ पे मैंने आज तक जो भी यहाँ पे फील किया है। आप यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जब आप आए थे तब आपका बॉडी लैंग्वेज, माइंड सेटअप और अब कितना फ़र्क लग रहा है? बहुत कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप में भी, हाँ भी हम करा सकते हैं, असिस्ट करा सकते हैं। और जैसे यहाँ पर पेशेंट्स की फ़्लो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, हम सिखाने वाले बहुत ज़्यादा हैं और हमारे कलीग्स जब आते हैं हम देख रहे हैं कि हम लोग अकेले नहीं, आपने तो वैसे सीख रहे हैं लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स भी सीख रहे हैं, तो हमें लगता है इतना बड़ा हब है उसमें हम लोगों को सिखलाई दे रही है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सब लोग सीख रहे हैं, सिखाते भी हैं, जो न्यू डॉक्टर आते हैं वो भी और जो हमारे मेंटोर्स हैं वो भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। बेटा कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पर? जब आए थे कैसा आपको लगता था? धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और हर चीज़ सीख रहे हैं। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁੜੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਤੇ ਫਲੀਆਂ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਘਬਰਾਇਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਮਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮਨ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਤ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ नौकरी ਵਧੀਆ मिल जू? हाँ जी पूरा। ये वेंचर जो फुल है डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अभी हम लोग डॉक्टर जतन जी से बात कर रहे हैं। जतन जी स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जतन जी क्या कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और पेशेंट को एक रिलीफ भी देते हैं, और आप सीख भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 3 in 1 है। हाँ जी, जैसे कि आपने कहा बिल्कुल सही है। मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब बिल्कुल कम था, तो जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो जैसे कि आपने बताया कि सिखा भी रहे हैं, अब थोड़ा सीखने को भी मतलब पहले मिलता था, लेकिन अब जैसे कि धीरे धीरे ज़्यादा सीख रहे हैं और आगे और भी सिखाना चाहेंगे। और बहुत बढ़िया लगता है जब हम लोग इसी क्लिनिक में सीख के हैं और यहीं से सिखा रहे हैं तो फिर ज़्यादा बढ़िया लगे। हाँ जी, जैसे कि आपने कहा बिल्कुल सही है। यहाँ पे मतलब सिखाया भी जाता है बहुत अच्छी तरह से, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है यहाँ पे बहुत सारी, तो जिससे कि हमें नई चीज़ों के बारे में पता लगता रहता है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਖਮਨੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੈਪ 'ਚ ਸੀ, ਗੈਪ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਮੇਰਾ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਊ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਊ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। कैसा लग रहा है यहाँ ट्रेनिंग लेके? सर यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, काम भी काफ़ी कुछ मैं सीख रही हूँ यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे कि जब मैंने स्टार्ट किया तब और अब बहुत ज़्यादा फ़र्क? सर मैंने कुछ टाइम तक डेंटल क्लिनिक में काम किया था, बट सिर्फ वो बिल्कुल थोड़ा नॉर्मल एक्सपीरियंस था मेरा, बट यहाँ पे आके मुझे सारा कुछ पता लग रहा है इंस्ट्रूमेंट का, और जो भी मतलब डेंटल के बारे में सारा काम के बारे में पता लगा। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ फैमिली एटमॉस्फेयर है, यहाँ टीचर्स भी बताते हैं, यहाँ जो बच्चे ज़्यादा सीख जाते हैं वो भी गाइड करते हैं, यहाँ एक फैमिली एटमॉस्फेयर है? जी सर। मैडम आए तो यहाँ पर आप स्टॉक को मेंटेन करने वाले बन के, लेकिन आप एक डेंटल में भी आपने सीख लिया है, क्योंकि ये डॉक्टर साहब ऐसे हैं वो ऑलराउंडर बना देते हैं, और आपको भी ऑलराउंडर बना दिया। हाँ जी सर, पूरा ही मतलब कुछ नहीं मुझे डेंटल मटेरियल का पता था, अब मुझे हर एक चीज़ का पता है, मतलब डेंटल मटेरियल का डिस्पोजल सारा अलग अलग हमने सेपरेट किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि अब मेरा जो हम मैं कहीं भी जाऊंगी जाने का तो अब मतलब ही नहीं पड़ता, अब तो हम यहीं रहेंगे? हाँ जी सर, सेवा करेंगे पूरी सर। कहना चाहेंगे कि जब आप यहाँ आए थे तो आपने एक कैंप्स लगाने और सेवा करनी वो सोचा था, लेकिन जब से आप यहाँ पर आए हैं आपको डेंटल में पूरी तरह से ट्रेनिंग भी मिल रही है और आप हर चीज़ में परिपक्व हो रहे हैं? बिल्कुल, एक्चुअली मेरा पहले डेंटल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जब से मैंने कैंप वगैरह लगाने शुरू किए हैं तो उसके मेरे को पता लगा कि RCT क्या होती है, ब्रेसेस क्या होते हैं, क्योंकि आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस ऑन दिस फील्ड। ठीक है, तो आई एम एंजॉइंग माई जॉब ऑल्सो, बट आई लर्न एवरी डे न्यू थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि मेरा पहले बैंकिंग का एक्सपीरियंस था और एजुकेशन का एक्सपीरियंस था, तो बहुत अच्छा लगा। अराउंड 5 मंथ्स हो गए मेरे को यहाँ पे, 6 मंथ्स। क्या कहना चाहेंगे इन मंथ्स में आपने हज़ारों की गिनती में बच्चों को डेंटल उनका चेकअप फ्री स्कूलों में जाकर, क्योंकि डॉक्टर साहब का मिशन है कि हमने पे बैक टू सोसाइटी करना है, और इसी मिशन को लेकर वो चल रहे हैं कि नहीं। मैंने जब आपसे बात की कि डॉक्टर साहब आप कुछ लेते हैं उनसे, जब आपने बताया कि हम तो फ्री करते हैं बिल्कुल, तो आई एम रियली अनॉयड। एक्चुअली फ्री सेवा तो इसलिए करते हैं क्योंकि स्कूल में जब जाते हैं ना परमिशन लेने के लिए, तो वो पेड सर्विसेज के लिए वो सीधा ही अवॉइड कर देते हैं। जब हम बोलते हैं कि उनको फ्री कैंप है, देन सामने से प्रिंसिपल उठ के अप्रिशिएट करता है कि यस यू आर डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर डेंटल का फील्ड जो कभी भी परफेक्ट कहे हम 100% नहीं रह सकते, क्योंकि ये नई चीज़ें रोज़ आती हैं
और आप यहाँ पर सेवा दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और पेशेंट भी कर रहे हैं? हाँ, सब कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, पेशेंट को अच्छा सा ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और उनको बोल भी रहे हैं कि अभी ट्रीटमेंट कराया है, बाकी दांतों में दिक्कत ना देने के लिए आपको उसको भी अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। दिन में 2 बार ब्रश करिए, कुछ खाने के बाद कुल्ला किया करिए, ये सब बोलते हैं और वो मानते भी है और फीडबैक, उनका जो फीडबैक है वो भी अच्छा आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो यहाँ की बैकबोन है, उनका मिशन ये है कि जो मेरे पास आ गया वो दिन ब दिन और आगे बढ़ता जाए और इसी मिशन को लेकर वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ नई जो है सिखाते रहते हैं। हाँ, जैसे मैं तो नेपाल से आया हूँ और मेरा इतना अच्छा क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था, यहाँ के मैं और ग्रो कर गया हूँ। अब तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि मैं अकेला पेशेंट भी हैंडल कर सकता हूँ, कुछ भी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, उनको बता भी सकता हूँ क्या करना है ट्रीटमेंट के बाद, अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब बता सकूँगा अभी। और फील कि पहले से अब एनर्जी लेवल्स भी बढ़ गए हैं और खुशी भी आ गई? हाँ, बहुत। जब आप यहाँ ज्वाइन किया तब और अब कितना फ़र्क लगा रहा है आपको? मैं पहले बहुत डरी हुई थी, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जैसे कि पहले अनकंफर्टेबल फील करती थी कि मैं ऐसे ही हैंडल कर भी लूँगी पेशेंट्स को, मैं अपनी जॉब अच्छे से कर भी पाऊँगी। दैन मैं स्टाफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत मुझे ग्रो किया है कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के डॉक्टर्स का बिहेवियर, यहाँ के जो भी कलीग्स हैं आपके, वो भी और सारे एक फैमिली की तरह हैं? जी सर, सारे मुझे बढ़ने में बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं मेरी। और पहले आपको मीडिया का भी, अब सोशल मीडिया के भी ये एक परिपक्व हैं, सोशल मीडिया के लिए भी आपको गाइड करते हैं? जी सर। डॉक्टर हिमानी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इधर? क्या कहना चाहेंगे कि आपने यहाँ ज्वाइन किया, आप यहाँ सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक भंडार है हमारे पास, हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। डॉक्टर साहब कोई ना कोई नए इनोवेटिव हैं, कोई ना कोई नए आइडियाज़, वो जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, कोई और चीज़ें ले आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है। यहाँ पे एक्चुअली पेशेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमें बहुत अच्छा सीखने को भी मिलता है और सिखाने को भी मिलता है। क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे आते हैं बड़े उनका माइंड सेटअप थोड़ा डिस्टर्ब सा होता है, बच्चे होते हैं उनको लगता है पता नहीं डेंटल का कैसा होगा, जब हम उन्हें गाइड करते हैं, आप उनको पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कराते हैं तो उनको भी बढ़िया लगता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है ना, जो बाहर से आते हैं बच्चे, उनको इतने पेशेंट मिले नहीं होते और वो पेशेंट करने में थोड़ा घबराते हैं। नए नए बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा, उनके अंदर घबराहट होती है कि हम कैसे करेंगे, थोड़ा डर जाते हैं। बस वो डर खुलता है और पेशेंट बहुत मिलते हैं तो उससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। अभी हमारे साथ हैं इस हॉस्पिटल की एक और बैकबोन जो सोशल मीडिया के ऊपर शाये रहते हैं, जो इंस्टा के ऊपर बच्चों को भी गाइड करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि जब से आपने यहाँ ज्वाइन किया है, यहाँ आपको फैमिली एटमॉस्फेयर मिला है, डॉक्टर साहब ने हमेशा आप लोगों को रिस्पेक्ट किया है और आपकी बात को माना है और जैसे आप गाइड करते हैं हॉस्पिटल आगे आगे बढ़ रहा है, बच्चों को भी आप सिखा रहे हैं, कैसा सुकून मिल रहा है? थैंक यू सर। फर्स्टली इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। बेसिकली मुझे डेंटिस्ट्री का कुछ भी डी भी नहीं पता था, बट जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे काफ़ी नॉलेज मतलब पता लगा यहाँ पे कि RCTs क्या होते हैं, ब्रेसेस क्या होता है, एक्सट्रैक्शंस क्या होता है। तो मतलब काफ़ी यहाँ पे काम करके मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं अपने आप में बहुत चेंजेस देख रही हूँ। मैं ज़ीरो टू हीरो कह सकते हो। मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल की थी, बट मैं अपने आप को बहुत आगे बढ़ते हुए मेरा काफ़ी ग्रोथ हुआ है इस क्लिनिक में आके। और सबसे बड़ी बात है कि आपने इंस्टा के ऊपर इतना ज़्यादा प्रमोशन कर दिया कि फ़ौरन से अब भी जो है इंक्वायरीज़ बहुत ज़्यादा आने लगी हैं और आपने इनके पेज को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है। और आप, सबसे बड़ी बात है कि फेक के ऊपर आप बिल्कुल नहीं विश्वास रखते, आप रीजनलिटी के ऊपर जाते हैं और यही रीजनलिटी है कि आप अपने जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनको आप सिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप डॉक्टर्स को भी सिखा रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कभी बंदा परफेक्ट नहीं होता और आप परफेक्शन है आपकी, आप लोगों को परफेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली सर। देखो, ऑर्गेनिक ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम भी अगर चीज़ें फेक डालने लगे तो लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा डेंटिस्ट से। तो ये सब भी ज़्यादा मैटर करता है कि ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि जो रियल रिव्यू है
जो भी पेशेंट अपना रियल टॉक्स करते हैं, जो भी टेस्टिमोनियल्स देते हैं, हमें वो बिल्कुल रियली डालना चाहिए, कोई फेक नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि आप भी फर्स्ट टाइम, आपने तो इतने लोगों को इतने वीडियोस बनाई हैं और आज आप ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम टीवी कैमरा के सामने हैं और ये फर्स्ट आपके इंटरव्यू है, क्योंकि आप कभी भी आप बैक फुट वाले हैं, आप फ्रंट फुट में नहीं थे, लेकिन फर्स्ट टाइम आज आप इंटरव्यू करें। सर बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा कैमरा से आई हूँ, मैं लोगों की वीडियोस तो बना लेती हूँ, बट मैं कभी भी हाँ बैक कैमरा ही रहती हूँ, फ्रंट कैमरा मतलब मेरी कॉन्फिडेंस खुद की इतनी नहीं है। बट सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा फैक्टर है जिससे लोगों को हम खुद को प्रमोट कर सकते हैं, हम अपनी ब्रांड प्रमोट कर सकते हैं, हम एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे काम करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आज आपने अपने हमारी बहुत हेल्प की। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हेल्पर्स, सभी से आपने इंटरेक्शन कराई और आप सबसे लास्ट में हमने आपको रिक्वेस्ट किया आप हमारे साथ आए। आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप यहाँ पर रिसेप्शन पे भी सेवा दे रहे हैं, सीख भी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपने जब डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रेनिंग लूँ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं। आपने कहा कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ा फाइनेंशियली मेरे को ये है कि मैं मेरी ज़्यादा चार्जेस भी ना लगे, तो फिर डॉक्टर साहब ने आपको रिसेप्शन भी दे दिया और सिखा भी रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मुझे अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे सीखने के लिए भी मिल रहा है और मेरे को इसके रिसेप्शन पे भी काम करने का मौका मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हमेशा हेल्पफुल हैं और जो यहाँ के टीचर्स हैं वो भी बहुत हेल्पफुल हैं और हमेशा पॉजिटिविटी देते हैं? हाँ जी सर, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है यहाँ के सभी स्टाफ एंड डॉक्टर्स। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਖਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਕਸਪੋਜਰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਰਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੂਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨया ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਆਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਕਾਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰਸ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਡ ਸਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥਿੰਡ ਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਥਿੰਡ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, 1 to 1 ਉਹ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੀ। ओके, थैंक यू सर। अभी हम हैं डॉक्टर विजेता जी के साथ, जो कनाडा में अपनी प्रैक्टिस करके और इधर इंडिया में अपनी वही सोच, वही क्रिएटिविटी देने आए हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि कौन सा आपको वहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर करना है, कैसे आपने वहाँ पर सेट होना है। विजेता जी स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे कि आपने थिंद क्लिनिक में ज्वाइन किया है और आप यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, एज ए टीचर भी, एज ए डॉक्टर भी, और सिखा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर, नया एक्सपीरियंस है वहाँ का भी और यहाँ का भी। यहाँ तो पहले ही था, वहाँ से यहाँ आके एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तो चेन वहाँ भी बनी हुई है और वो चेन यहाँ भी आपने डॉक्टर साहब के साथ अटैच कर दी है, और आपको खुशी होती है कि डॉक्टर साहब के साथ पहले ही बहुत बड़ी चेन जो है कनाडा की, अमेरिका की, हम लोग यूके की बात कर लें, हर कंट्री की चेन यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया की है। और आपको खुशी होती है कि जब पेशेंट बोलते हैं कि हम कनाडा से हैं, तो आपको खुशी होती है कि मैं उस क्लिनिक में काम कर रही हूँ जो इंटरनेशनल क्लिनिक है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत खुशी होती है जब लोग स्पेशली वहाँ से आते हैं, क्योंकि वहाँ डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। तो यहाँ जब लोग आते हैं तो वो अगर ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड होते हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।
हेलो, माई सेल्फ नीतू। ये हमारी CBCT मशीन है। CBCT भी इसमें ही होता है और OPG वगैरह भी इसमें होता है। हम CBCT इसलिए करते हैं ताकि हम पेशेंट को अच्छी तरह डायग्नोस कर सके, ताकि उनको हम बता सकें उनके दांतों में क्या क्या प्रॉब्लम है। हमारा एक्सरे फुल माउथ होता है, हम सिंगल एक्सरे वगैरह नहीं लेते हैं। इसमें CBCT हो जाता है और इसी में एक्सरे वगैरह होता है, ताकि हम पेशेंट को बाद में अच्छी तरह उनको डायग्नोसिस करके उनको बता सके कि उनका ट्रीटमेंट क्या क्या होने वाला है। और ये फुल माउथ एक्सरे होता है। ट्रेनिंग देते, पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देते, जो जो इनके इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो मतलब जैसे प्रोटोकॉल वगैरह दिया होता है, तो वो सारे स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं। हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक्सरे करना है। ये हमारा चेकअप एरिया है, जहाँ ये फर्स्ट चेयर लगी हुई है। जैसे कोई भी न्यू पेशेंट वगैरह आता है, जब हमने चेकअप करना होता है न्यू पेशेंट का, तो हम यहीं पर RVG उनका करते हैं और इंट्राऑरल फ़ोटो लेते हैं, ताकि हम उनको क्लिनिकली समझा सके कि हम फ़ोटो वगैरह इससे लेते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर जो भी वो प्रॉब्लम के लिए आए हैं वो उनका प्रॉब्लम दिखाते हैं। इसलिए हम इंट्राऑरल फ़ोटो यहीं लेते हैं, चेयर पर ही।